Hello students, welcome to the next lecture on the partial differential equation. Today I will explain you with the help of the 15 plus numerical examples how we can solve the homogeneous linear partial differential equations with the constant coefficients. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the partial differential equations. आज का पूरा लेक्चर लास्ट 2 लेक्चर्स पे ऑक्सिलरी इक्वेशंस एंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन पे डिपेंडेंसी है, तो आपको पहले ये 2 लेक्चर सुनने होंगे जिससे आप आज का लेक्चर इजीली सॉल्व कर पाओ। फाइन। और मैं 15 प्लस न्यूमेरिकल एग्जांपल इसमें कवर करूंगा और हर क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे हम। फाइन। और वो कैसे सॉल्व कर पाओगे? इफ यू नो हाउ यू कैन राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, हाउ यू कैन राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेस्ड ऑन अवर लास्ट 2 lectures. तो जैसा मैंने बताया, we have discussed the complementary equation, auxiliary equations and the complementary functions of the partial differential equations. So our target is how we can find the solution of the homogeneous linear partial differential equation. Like you can see, when you can say homogeneous, the right hand side is my 0. Fine. These are my homogeneous. आप उसका भी लेक्चर देख सकते हो, difference between the homogeneous, difference between the linear and the non-linear PD. Fine. All you can see the coefficients are my constants, so that's why this equation is called as the homogeneous linear partial differential equations with the constant coefficients. और आपका आज का लेक्चर का पर्पस है how we can solve this complete partial differential equation. Fine. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कुछ क्वेश्चन एज एन एक्सरसाइज भी देकर जाऊंगा, तो आपको वो खुद एज एन एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी. नाउ इफ आई कंसिडर एनी ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n. ऑफ ऑर्डर n का मतलब कहीं पे भी d और d प्राइम लिखा होगा, कहीं पे भी उन सब की डिग्री सेम होगी, आपकी nth ऑर्डर की होगी. फाइन. देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस and the particular integral. How you can find the complementary functions? We can find the auxiliary equation firstly, find its roots. Based on the root, we can write as a functions, arbitrary function y plus mi, where I varies from 1 to 3 up to the order of the partial differential equation. Fine. तो इसकी हम ऑलरेडी बहुत सारी एग्जांपल्स अपने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेक्चर में कवर कर चुके हैं. चलिए, how we can find the particular integral? First of all, make sure students, particular integral is found only when the right hand side phi of x comma y is my non-zero. अगर आपका phi of x y 0 हुआ तो आपका particular integral आपका 0 हो जाएगा. Fine. So we can find the particular integral is 1 over whatsoever the coefficient of the u into the right hand side. So clearly say whenever phi of xy is 0, what does it implies? That implies pi is my 0. Fine. So what are the kind of the phi I? Phi I may be cosine, exponential, logarithm, polynomial and so on. Fine. लेकिन आज के लेक्चर में हम pi के बारे में बात नहीं करेंगे. Why? Because आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ homogeneous partial differential पे है. homogeneous कब बनता है? Whenever phi of x comma y is 0. फाइन. आज के इसके बाद जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, दैट आई विल टेल यू इन डिटेल हाउ वी कैन फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर्स. सो व्हेनेवर द इक्वेशन इज होमोजेनियस, पीआई 0 हो जाएगा, तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन, वो क्या रह जाएगा? पीआई तो आपका 0 हो गया. दैट मींस द सॉल्यूशन विल बी ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. चलिए, नोटेशन कॉपी पे नोट कर लीजिए. Wherever you can see the small p is defined as the del u by del x, where u is my dependent variable. Fine. U is my dependent variable and independent variable is my x and y are my independent variables. Make sure students, कई books instead of taken as a u आप उसको z भी लिख सकते हो. Fine. तो आपका उस केस में p क्या हो जाएगा? del z by del x, और आपका r क्या हो जाएगा? डेल स्केयर z अपॉन डेल एक्स स्केयर. चॉइस आपकी है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर. ठीक है, लेकिन मेथड थ्योरी सब कुछ सेम है. फाइन. सो r आपके पास क्या है? u x x. तो बेसिकली r क्या हो गया आपका? u x x.
तो अगर मैं इसको डी की फॉर्म में लिखूं तो ये 2 बार है, आई कैन से एज डी स्क्वायर। फाइंड डी स्क्वायर मीन्स यू एक्स एक्स। इस तरह से एस को कैसे लिखा जाएगा, विच इज एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई मतलब डी इंटू डी प्राइम, और टी कैसे लिखा जाएगा आपके पास, दैट इज अ डी प्राइम स्क्वायर। क्लियर? चलिए, दैट्स होमोजेनियस, वो ऑलरेडी बता चुके हम। इफ यू आईज आर द सॉल्यूशन, द सम इज आल्सो द सॉल्यूशन, बट दैट रिजल्ट इज नॉट होल्ड फॉर द नॉन होमोजेनियस, नॉट होल्ड फॉर द नॉन होमोजेनियस। जब आप कभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में हो तो उस पर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द 15 प्लस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। सबसे पहले चेक करिए वेदर इट्स होमोजेनियस और नॉट। यस, इट इज अ होमोजेनियस बिकॉज राइट हैंड साइड इज 0। मेक श्योर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा और हमेशा आपकी किस पे डिपेंड होनी चाहिए, इट मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन दी एक्स एंड वाई। अगर आपकी राइट हैंड साइड पे कहीं पे u लिखा हुआ है, देन यू मस्ट पुट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो आपका जर्नल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। लेकिन पी आई तो आपका 0 है बिकॉज राइट हैंड साइड इज माई 0, so your target is to find only as the complementary solution. Is it okay? Now I can substitute the value of r. R is my uxx, s is my u of xy, and t is my u of yy. Clear? So I can substitute that. इसको मैं एक फंक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूं, ऑपरेटर की फॉर्म में। फाइन, तो कैपिटल डी की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 2xx दैट इज डी स्क्वायर, xy I call as a d into d prime plus 2 into d prime square. Clear? Now you can write as the auxiliary equations. मैं क्विकली रिकॉल कर देता हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, d को m सब्स्टिट्यूशन करोगे और d प्राइम की जगह पे 1, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, इसमें फिल करो। सो 2m स्क्वायर प्लस 5m इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इज माई 0। तो ये कितना बन गया, 2m स्क्वायर plus 5m plus 2. So can you factor them? Yes, you can do easily. Plus 4m plus 1m plus 2 is equal to 0. तो आपके फैक्टर बन गए 2m plus 1 and m plus 2. तो what is the value of the m? m is my minus half and m is my minus of 2. So clearly say these are my distinct. Therefore, your complementary solution, your complementary function will be f1, because roots are real and distinct, y minus mx plus f2 y minus m of x. तो बिकॉज आपका यही आपका u है, सो आई कैन कॉल एज ए u इज सी एफ। क्लियर? और आप इसका एलसीएम ले लो, सो दैट विल बी f1 y माइनस 2x प्लस f2 2y माइनस x, जो डिवाइडेड बाई 2 है वो आपका कांस्टेंट फंक्शन में एडजस्ट हो जाएगा। फाइन, सो y माइनस 2x और 2y माइनस x इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए, लुक एट दैट, इज ए होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड इज माई नॉन जीरो, तो आप क्या कहोगे, आप इसे, अगर आप इसे नॉन होमोजीनियस कहोगे तो गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज मैंने क्या बताया, राइट हैंड साइड किस पे डिपेंड होना चाहिए, इट डिपेंडेंट ओनली ऑन दी एक्स एंड वाई, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। लेकिन यहां तो यू लिखा हुआ है, तो पहले इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाइए आप। फाइन, इज इट ओके? नाउ यू कैन सी इट इज माई होमोजीनियस। फाइन, तो इसको आप पहले कैपिटल डी की फॉर्म में लिख लो, दैट इज ए कैपिटल डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी प्राइम स्क्वायर। व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0। फाइन, मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल डी को एम लिखेंगे, डी प्राइम को 1 सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस माइनस ए, विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपका पास सोल्यूशन क्या बन गया, आपके पास f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। मेक श्योर स्टूडेंट्स, आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, fi y प्लस एम आई ऑफ x। और इस पार्शियल डिफरेंशियल का ऑर्डर कितना है, तो आप देख सकते हो कैपिटल डी की पावर कितनी है आपकी, ऑर्डर 2 है, तो 2 आपके पास f1 f2 आएंगे, तो वही आपके पास आ गए। क्लियर? वेयर f1 एंड f2 आर दी आर्बिट्री फंक्शन, चाहे आप पहले प्लस वाला लिखो चाहे माइनस, दैट्स द सेम थिंग। चलिए, सबसे पहले इसको नोटेशन में फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज अ डी क्यूब, एक्स क्यूब है ना,
एक्स स्केयर लिखा हुआ है, सो कोफिशिएंट 3 डी स्केयर इंटू डी प्राइम। यहाँ पे क्या आपके पास 2x तो एक ही है, लेकिन डी प्राइम आपके पास 2 है। फाइन। और आप देख सकते हो इस होमोजीनियस, और सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट। ऑक्सिलरी इक्वेशन तभी लिख सकते हो जब आपके पास जो भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, कांस्टेंट्स होने चाहिए। तो आप लिखवाओ क्विकली से, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द m? m कॉमन ले लेते हैं एक, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो कैन यू फैक्टर दैट? That's quite easy. M minus 1, M minus 2. So what are my roots? Roots are my 0, 1 and 2. And all are my real and distinct. So your solution will be, आप इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो 3 ही रूट्स आए ना आपके पास। So F1 y plus 0x plus F2 y plus mx plus F3 y plus 2x, where 0, 1, 2 are my roots. फाइन। इस y plus 0x को आप fy भी लिख सकते हो आप अकेला, लाइक। लुक एट द नेक्स्ट वन। नाउ सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो, इट्स ऑलरेडी इन द डी फॉर्म। फाइन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बिकम्स m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 0। अब आप इसके फैक्टर तो नहीं बना पाओगे। कैन यू से m इज इक्वल टू 1 इज द रूट? सो चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0। यस, 1 इज माई रूट, तो अब क्या होगा, m माइनस 1। ठीक है। अब आप बाकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, जैसे आप लोअर क्लासेस में करते थे। फाइन, चाहे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए m माइनस 1 से, लेकिन मैं आपको एक आसान मेथड बता दे रहा हूं। फाइन, वो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बताया था आपको। यू कैन राइट द कोफिशिएंट ऑफ द m क्यूब 1, m स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 6, m का कोफिशिएंट 11 और कांस्टेंट टर्म। फाइन। अगर बच्चों मान लो यहाँ पे ये चीज नहीं लिखा होता, तो फिर यहाँ पे 11 की जगह पे आपको 0 लिखते हैं। फाइन। सीक्वेंस वाइज लिखना, दिस इज द हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट टर्म। फाइन। उसके बाद m स्क्वायर, m कांस्टेंट। अब आपका क्या है, 1 इज द रूट, तो इसको पहली टर्म को ऐसा ही लिख देते हैं नीचे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5। अब यहाँ पे ये चेंज हो गया ना, इट विल बी माई 11, 11 माइनस 5 इज 6, 1 इंटू 6 इज 6, तो ये 0 आ गया। फाइन। तो आप इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन से लिखेंगे, दैट विल बी माई कांस्टेंट। फाइन। ये आपकी पॉलिनोमियल m में है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू m, और ये आपके पास m स्क्वायर, सो दैट इज अ 1m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप ये क्वाड्रेटिक हो गई, सो क्वाड्रेटिक के फैक्टर आप इजिली बना सकते हो, दैट विल बी m माइनस 2, m माइनस 3। सो आपके रूट्स के आगे 1, 2 एंड 3 आर दी रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो देयरफॉर complementary functions, because pi is my 0, so u is, so pi is my 0, so cf कितना हो जाएगा, f1 y plus 1x, सेकेंड f2 y plus 2x, f3 y plus 3x। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 3 है, और यहाँ पे भी 3 ही आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जब इसका मान लो किसी का पार्शियल का डिफरेंशियल ऑर्डर 3 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही आए हैं, वो तो थर्ड कैसे बनाएंगे वो भी वी विल सी दैट। सो कैन यू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस? सो इट विल बी m क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज 0, m स्क्वायर इज ए कॉमन, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 माइनस 1। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखो u कितना हो जाएगा, पहले 0 के साथ लिखते हैं f1 y plus 0x is y, because these are my repeated। फाइन। तो रिपीटेड में क्या सिखाया था मैंने आपको इस कंप्लीमेंट्री फंक्शन लेक्चर में, यू कैन राइट एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x f2 y, और ये थर्ड वाला नॉन रिपीटिंग है, तो इसके साथ f3 y माइनस m। क्लियर। अब इसका ऑर्डर देखो कितना है, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज माई 5।
3 and 2 5 है ना, लेकिन आपके 5 तो आर्बिट्री आए नहीं, इसका मतलब आपको कोई 2 फंक्शन और ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। फाइन, अब वो दो आपके कम रह गए, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन रिपीटिंग फैक्टर। तो वहां पे आपको रिवर्स कर देना, यहाँ पे आप y के साथ लिख रहे थे, वहां पे x के साथ लिखोगे, और क्योंकि दो रिपीट दो रह गए तो एक बार पोलोनोमियल f5 रिपीट कर देना इसको, आपको जितने रह गए आपके, क्योंकि अब ये दोनों सेम है तो इसके साथ आपने पोलोनोमियल यहाँ पे x की जगह पे y, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स ऑफ द d प्राइम। क्लियर? आप इस थ्योरी, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग आप ये वाला लेक्चर दोबारा सुन सकते हो। फाइन, बिकॉज द पार्शियल डिफरेंशियल हैज ऑर्डर 5, सो यू हैव टू राइट द 5 आर्बिट्रेरी फंक्शन। आप अपना आंसर एग्जाम में कभी भी चेक कर सकते हो, जितना ऑर्डर है उतने f5 होने चाहिए। कैन यू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्विकली? m क्यूब 4m स्क्वायर प्लस 4m। फाइन, इसमें से m कॉमन निकाल लें, क्या रह गया पीछे? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या बन गया आपके पास? m माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई? इट विल बी 0, एक 2 रह गया और एक 2 आ गया। अब इसका देख लो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपके पास है 4, लेकिन यहां तो 3 मिले। फाइन, तो आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे इसका? f1 y प्लस 0x इज y, f2 y प्लस 2x। अब क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग है, फाइन, तो रिपीटिंग के लिए x लगाना है आपको साथ में y प्लस 2x, बट आपको ऑर्डर 4 चाहिए, तो एक जो रह गया उसको आप f4x के साथ। फाइन, अब क्योंकि एक ही है तो एक ही बार, अगर एक बार और रह जाता तो y लगाने के बाद सॉल्यूशन को कंप्लीट कर देते। क्लियर? चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। कैन यू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस? 25 m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फाइन, तो ये क्या बन गया? m, ये तो होल स्क्वायर ही बन गया ना इसका, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4/5, 4/5। क्लियर? क्लियर? और अदरवाइज फैक्टर बना सकते हो, 20 and 20 मल्टीप्लाई करके 400 होना चाहिए एंड सो ऑन। तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया? बिकॉज राइट हैंड साइड इज 0, सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या हो गया? f1 y प्लस 4/5 इंटू एक्स, क्योंकि ये रिपीटिंग है तो साथ में आपने x लगाया, f प्लस 4/5, वेयर f1 एंड f2 आर माई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। और इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज अगेन 2, और 2 ही आपके पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। इसको और आप और कैसे लिख सकते हो? एलसीएम ले लो। फाइन, दैट विल बी 5y प्लस 4x। फाइन, नीचे जो 5 आएगा वो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा। फाइन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी 5y प्लस 4x। आप यहां पे भी छोड़ सकते हो और आप इसको यहां भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी। लुक एट द नेक्स्ट वन। सो कैन यू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन? m4 minus 1 is equal to 0. Fine, how you can find the 4 roots? That will be m square minus 1 and m square plus 1. फाइन, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएंगे आपके फैक्टर? m माइनस 1, m प्लस 1 एंड m प्लस आयोटा, m माइनस आयोटा। तो आपके रूट्स क्या क्या आ गए? 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। फाइन, और आप क्या कर सकते हो? यहां कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हो आप। फाइन, आप इसमें प्लस 2, सॉरी ये वही प्लस माइनस कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा ना, कोफिशिएंट नहीं बना आपके पास भी, तो इसके लिए सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? f1 पहले -1 एक ही बार है, y माइनस माइनस, फाइन, f2 y प्लस mx प्लस f3 आयोटा के साथ y प्लस आयोटा x प्लस f4 के साथ y माइनस आयोटा x। तो कितना ऑर्डर है इसका डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल का? ऑर्डर इज माई 4 एंड यू हैव ऑलरेडी 4 आर्बिट्रेरी फंक्शंस। कैन यू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस? m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 0। फाइन, तो m कॉमन निकाल लीजिए और 0 एंड 2 आपके रूट्स आ गए। ये तो सेम आ गया ना, प्रीवियस वाली एग्जांपल ही आ गई दोबारा से। क्लियर? चलिए लुक एट दिस नेक्स्ट वन। इसका ऑर्डर कितना आपके पास?
क्विक पहले देख लेते हैं। 4 है तो 4 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आने चाहिए, फंक्शन आने चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बिकम्स 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइन। अब इसके फैक्टर बना लो, अगर फैक्टर नहीं बनते तो एक रूट्स निकाल लें हम। फाइन। क्या 1 इसका रूट है? चेक कर ले। 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, यस 1 इज द रूट। तो अगर 1 रूट है तो m माइनस 1 हो गया। फाइन। तो इसका m क्यूब, m की पावर 4, m क्यूब, m स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो दैट्स अ 0, m कांस्टेंट। फाइन। तो आपका 1 इज अ रूट, तो 1 का 1 आ गया। 1 इंटू 1 इज 1, दैट्स विल बी द माइनस 1। 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, ऐड कर दो। फाइन। 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये हमेशा 0 आना चाहिए, अगर ये 0 नहीं आया तो रूट्स नहीं बनेगा। फाइन। तो ये आपका ये कांस्टेंट, ये m स्क्वायर m क्यूब, 1 इंटू एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से इसका आप देख लो, 1 फिर से रूट बन जाएगा। फाइन। अब 1 से दोबारा कर लेते हैं। अब सिर्फ नीचे वाले को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 को 1 रहने देते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, फाइन, दैट विल बी 0। 0 इंटू 1 इज 1, दैट्स अ 0। 1 इंटू 1 0, फाइन। लेकिन देखो यहाँ 0 नहीं ना बना, इसका मतलब 1 इज नॉट द रूट ऑफ द लेकिन 1 तो था इसका रूट ना, कहाँ गलती हुई है? 1 इंटू 1 इज 1, 0। यहाँ देखो 0 इंटू 1 0 आएगा ना। फाइन। तो 0 इंटू 1 0 आया आपके पास, दैट विल बी माइनस 1। माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, तो 0। अब आप देखो इतने का फिर से 1 रूट आया ना आपके पास, तो बाकी क्या रह गया? ये तो 0 हो गया। कांस्टेंट m स्क्वायर, सो दैट विल बी m स्क्वायर माइनस 1। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे ना m प्लस 1 m माइनस 1। तो आपके पास आंसर क्या बन गया? m माइनस 1 क्यूब m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके रूट्स आ गए 1 1 1 एंड माइनस 1। क्लियर? तो कैसे लिखा जाएगा? पहले माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, y माइनस 1x प्लस, अब क्योंकि ये रिपीटिंग है, 3 बार रिपीट है आपके पास, ध्यान रखना, y प्लस 1x। ठीक है, तो पहली बार रिपीट करेंगे, x लगाएंगे साथ में, f3 y प्लस 1x। फिर से रिपीट करेंगे, x स्क्वायर लगाएंगे साथ में, सो f4 y प्लस 1x। तो ऑर्डर भी इसका 4 है। 4 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर माई आर्बिट्री फंक्शंस इज द कंप्लीमेंट्री फंक्शंस। और वही क्योंकि पी आपका 0 है ना, इसमें पी इज माई 0, तो आपका u कितना हो जाएगा? कंप्लीट सोल्यूशन इज जर्नल सोल्यूशन विल बी, ये पी 0 है तो u इज नथिंग बट माई कंप्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए लुक एट दैट, इसको कैसे लिखा जाएगा? d4 प्लस डी प्राइम 4 ऑफ द u इज इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई आपकी? m रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे करेंगे? देर आर द 2 वेज। एक तो आप माइनस 1 की पावर 1/4, फाइन, तो आप इसके परमिटिव रूट निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स में। अदरवाइज यू कैन ऐड, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं, फाइन, ये लिख सकते हैं ना। अदरवाइज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई रेस टू पावर आयोटा पाई लिख सकता हूँ ना, माइनस 1 को, फाइन। और 1/4 अंदर जाएगा तो 2n पाई लगेगा ना साथ में, तो चाहे तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लीजिए। सो दैट विल बी m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2। सो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट गिव यू a माइनस b एंड a प्लस b। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना दोनों। इसके रूट्स आप निकाल लो बाय यूजिंग माइनस बी प्लस माइनस कैपिटल डी अपॉन 2a के साथ, इसके भी रूट्स आप निकाल सकते हो। तो जैसे आप निकालोगे इसके रूट्स, मैं एक के निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, दैट्स अ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बन गया? माइनस रूट 2, दैट इज माई रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, so that will be माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई रूट 2। दूसरे केस में यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो योर 4 रूट्स आर माई, तो आपके रूट्स क्या क्या हो गए? माइनस 1 प्लस आयोटा, फाइन, माइनस 1 माइनस आयोटा,
1 plus iota and 1 minus iota, and clearly say all these roots are my distinct. तो जैसे डिस्टिंक्ट है तो आप इसको सीधा लिख सकते हो y प्लस एम एक्स, वाई प्लस एम एक्स, वाई प्लस एम एक्स. इसका ऑर्डर भी आपका 4 है और ये आपके आर्बिट्री फंक्शंस भी 4 ही मिलेगा. Now you can solve all these 12 question as an exercise. Fine. Clearly say all are my homogeneous constant coefficients. Your target is to find the complementary functions. Let me know in the comment box if you have any doubt regarding this lecture. We will see the next lecture how we can find the particular integral when the right hand side is my non-zero. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.